قرآن مجید کا 23واں سورہ سورہ مومنون۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، در حقیقت یہی وہ وارثان جنت ہے جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے، پھر نطفے کو علقہ بنایا ہے، اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے۔ تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو، پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے، اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ اور وہ درخت پیدا کیا ہے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو۔ اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ان کی قوم کے کافر روسا نے کہا کہ یہ نوح تمہارے ہی جیسے انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہیں جنون ہو گیا ہے، لہذا چند دن ان کے حالات کا انتظار کرو۔ تو نوح نے دعا کی کہ پروردگار ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اسی کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لینا اور اپنے اہل کو لے کر روانہ ہو جانا، علاوہ ان افراد کے جن کے بارے میں پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ یہ سب غرق کر دیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دی ہے، اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس امر میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تم پرہیزگار نہ بنو گے؟ تو ان کی قوم کے ان روسا نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہے تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جیئیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
इस रसूल ने कहा कि परवरदिगार तू हमारी मदद फरमा कि ये सब हमारी तकलीफ कर रहे हैं। इरशाद हुआ कि अनकरीब ये लोग पशेमान हो जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि इन्हें एक बरहक चिंगार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और हमने इन्हें कूड़ा करकट बना दिया कि जालिम कौम के लिए हलाकत और बर्बादी ही है। फिर इसके बाद हमने दूसरी कौमों को इजाद किया। कोई उम्मत न अपने मुकर्ररा वक्त से आगे बढ़ सकती है और न पीछे हट सकती है। इसके बाद हमने मुसलसल रसूल भेजे और जब किसी उम्मत के पास कोई रसूल आया तो उसने रसूल की तकजीब की और हमने भी सबको अजाब की मंजिल में एक के पीछे एक लगा दिया और सबको एक अफसाना बनाकर छोड़ दिया कि हलाकत इस कौम के लिए है जो ईमान नहीं लाती है। फिर हमने मूसा और इनके भाई हारून को अपनी निशानियों और वाज़ेह दलील के साथ भेजा। फिरऔन और उसके ज़ोमा मुमलिकत की तरफ तो इन लोगों ने भी इस्तकबार किया और वो तो थे ही ऊंचे किस्म के लोग। तो उन लोगों ने कह दिया कि क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आएं जबकि इनकी कौम खुद हमारी परस्तिश कर रही है। ये कहकर दोनों को झुठला दिया और इस तरह हलाक होने वालों में शामिल हो गए। और हमने मूसा को किताब दी कि शायद इस तरह लोग हिदायत हासिल कर लें। और हमने इब्ने मरियम और इनकी वालिदा को भी अपनी निशानी करार दिया और इन्हें एक बुलंदी पर जहां ठहरने की जगह भी थी और चश्मा भी था पनाह दी। ए मेरे रसूलों, तुम पाकीज़ा ग़िज़ाएं खाओ और नेक काम करो कि मैं तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर हूं और तुम्हारा सबका दीन एक दीन है और मैं ही सबका परवरदिगार हूं, लिहाजा पस मुझसे डरो। फिर ये लोग आपस में टुकड़े टुकड़े हो गए और हर ग्रोह जो कुछ भी इसके पास है इसी पर खुश और मगन है। अब आप इन्हें एक मुद्दत के लिए इसी गुमराही में छोड़ दें। क्या इनका ख्याल ये है कि हम जो कुछ माल और औलाद दे रहे हैं ये इनकी नेकियों में उजरत की जा रही है? नहीं, हरगिज नहीं। इन्हें तो हकीकत का शऊर भी नहीं है। बेशक जो लोग खौफ परवरदिगार से लर्जा रहते हैं और जो अपने परवरदिगार की निशानियों पर ईमान रखते हैं और जो किसी को भी अपने रब का शरीक नहीं बनाते हैं और वो लोग जो बकदर इम्कान राह खुदा में देते रहते हैं और इन्हें ये खौफ लगा रहता है कि पलटकर उसी की बारगाह में जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो नेकियों में सबकत करने वाले हैं और सबके आगे निकल जाने वाले हैं। और हम किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं और हमारे पास वो किताब है जो हक के साथ बोलती है और इन पर कोई जुल्म नहीं किया जाता है, बल्कि इनके कुलूब इसकी तरफ से बिल्कुल जहालत में डूबे हुए हैं और इनके पास दूसरे किस्म के अमाल हैं जिन्हें वो अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि जब हमने उनके मालदारों को अजाब की गिरफ्त में ले लिया तो अब सब फरियाद कर रहे हैं, अब आज वादा ना करो, आज हमारी तरफ से कोई मदद नहीं की जाएगी। जब हमारी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं तो तुम उल्टे पांव वापस चले जा रहे थे, अकड़ते हुए और किस्सा कहते और बकते हुए। क्या इन लोगों ने हमारी बात पर गौर नहीं किया या इनके पास कोई चीज आ गई है जो इनके बाप दादा के पास भी नहीं आई थी, या इन्होंने अपने रसूल को पहचाना ही नहीं है और इसीलिए इनकार कर रहे हैं, या इनका कहना यह है कि रसूल में जुनून पाया जाता है जबकि वो इनके पास हक लेकर आया है और इनकी अक्सरियत हक को नापसंद करने वाली है। और अगर हक इनकी ख्वाहिशात का इत्तिबा कर लेता तो आसमान और जमीन और इनके माबैन जो कुछ भी है सब बर्बाद हो जाता, बल्कि हमने इनको इन्हीं का जिक्र अता किया है और ये अपने ही जिक्र से एराफ किए हुए हैं। तो क्या आप इनसे अपना खर्च मांग रहे हैं? हरगिज नहीं। खुदा का दिया हुआ खिराज आपके लिए बहुत बेहतर है और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है और आप तो इन्हें सीधे रास्ते की दावत देने वाले हैं। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं वो सीधे रास्ते से हटे हुए हैं। और अगर हम इन पर रहम करें और इनकी तकलीफ को दूर भी कर दें तो भी ये अपनी सरकशी पर अड़े रहेंगे और गुमराह ही होते जाएंगे। और हमने इन्हें अजाब के जरिए पकड़ा भी, मगर ये न अपने परवरदिगार के सामने झुके और न ही गिड़गिड़ाते हैं। यहां तक कि हमने शदीद अजाब का दरवाजा खोल दिया तो इसी में मायूस होकर बैठ रहे। वो वही खुदा है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए हैं, मगर तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो। और उसी ने तुम्हें सारी जमीन में फैला दिया है और उसी की बारगाह में तुम इकट्ठा किए जाओगे। वही वो है जो हयात और मौत का देने वाला है और उसी के इख्तियार में दिन और रात की आमद रफ्त है। तो तुम अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो?
बल्कि इन लोगों ने भी वही कह दिया जो इनके पहले वालों ने कहा था कि अगर हम मर गए और मिट्टी और हड्डी हो गए तो क्या हम दोबारा उठाए जाने वाले हैं? बेशक ऐसा ही वादा हमसे भी किया गया है और हमसे पहले वालों से भी किया गया है, लेकिन ये सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां हैं। तो जरा आप पूछिए कि ये जमीन और इसकी मखलूकात किसके लिए है? अगर तुम्हारे पास कुछ भी इल्म है, ये फौरन कहेंगे कि अल्लाह के लिए है। तो कहिए कि फिर समझते क्यों नहीं हो? फिर मजीद कहिए कि सातों आसमान और अर्श आजम का मालिक कौन है? तो ये फिर कहेंगे कि अल्लाह ही है। तो कहिए कि आखिर उससे डरते क्यों नहीं हो? फिर कहिए कि हर शय की हुकूमत किसके इख्तियार में है कि वही पनाह देता है और उसी के अजाब से कोई पनाह देने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई भी इल्म है तो ये फौरन जवाब देंगे कि ये सब अल्लाह के लिए है। तो कहिए कि आखिर फिर तुम पर कौन सा जादू किया जा रहा है? बल्कि हम इनके पास हक लेकर आए हैं और ये सब झूठे हैं। यकीनन खुदा ने किसी को फर्जंद नहीं बनाया है और ना उसके साथ कोई दूसरा खुदा है, वरना हर खुदा अपनी मखलूकात को लेकर अलग हो जाता और हर एक दूसरे पर बरतरी की फिक्र करता और कायनात तबाह और बर्बाद हो जाती। अल्लाह इन तमाम बातों से पाक व पाकीज़ा है। वो हाजिर व गायब सब का जानने वाला है और इन सब के शिर्क से बुलंद व बालातर है। और आप कहिए कि परवरदिगार, अगर जिस अजाब का इनसे वादा किया है मुझे दिखा भी देना, तो परवरदिगार मुझे इस जालिम कौम के साथ न करार देना। और हम जिस अजाब का इनसे वादा कर रहे हैं इसे आपको दिखा देने की कुदरत भी रखते हैं। और आप बुराई को अच्छाई के जरिए रफा कीजिए कि हम इनकी बातों को खूब जानते हैं। और कहिए कि परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूं और इस बात से पनाह मांगता हूं कि शयातीन मेरे पास आ जाएं। यहां तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ गई तो कहने लगा कि परवरदिगार मुझे पलटा दे, शायद मैं अब कोई नेक अमल अंजाम दूं। हरगिज नहीं, ये एक बात है जो ये कह रहा है और इनके पीछे एक आलम बर्ज़ख है जो कयामत के दिन तक कायम रहने वाला है। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना रिश्तेदारियां होंगी और ना आपस में कोई एक दूसरे के हालात पूछेगा। फिर जिनकी नेकियों का पल्ला भारी होगा वो कामयाब और निजात पाने वाले होंगे, और जिनकी नेकियों का पल्ला हल्का होगा वो वही लोग होंगे जिन्होंने अपने नफ्स को खसारे में डाल दिया है और वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। जहन्नुम की आग इनके चेहरों को झुलस देगी और वो इसी में मुंह बनाए हुए होंगे। क्या ऐसा नहीं है कि जब हमारी आयतें तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं तो तुम इनकी तकज़ीब किया करते थे? वो लोग कहेंगे कि परवरदिगार, हम पर बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम गुमराह हो गए थे। परवरदिगार, अब हमें जहन्नुम से निकाल दे, इसके बाद दोबारा गुनाह करें तो हम वाकई जालिम हैं। इरशाद होगा कि अब इसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और बात ना करो। हमारे बंदों में एक ग्रोह ऐसा भी था जिनका कहना था कि परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं, लिहाजा हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हम पर रहम फरमा कि तू बेहतरीन रहम करने वाला है। तो तुम लोगों ने इनको बिल्कुल मजाक बना लिया था, यहां तक कि इस मजाक ने तुम्हें हमारी याद से बिल्कुल गाफिल बना दिया और तुम उनका मजाका ही उड़ाते रह गए। आज के दिन हमने इनको ये जजा दी है कि वो सरासर कामयाब है। फिर खुदा पूछेगा कि तुम रुए जमीन पर कितने साल रहे? वो जवाब देंगे कि एक दिन या इसका भी एक ही हिस्सा, इसे तू शुमार करने वालों से दरियाफ्त कर ले। इरशाद होगा कि बेशक तुम बहुत मुख्तसर रहे हो और काश तुम्हें इसका इदराक होता। क्या तुम्हारा ख्याल ये था कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और तुम हमारी तरफ पलटाकर नहीं लाए जाओगे? बस बुलंद बाला है वो खुदा जो बादशाह बरहक है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, और वो अर्श करीम का परवरदिगार है। और जो अल्लाह के साथ किसी और खुदा को पुकारेगा जिसकी कोई दलील भी नहीं है तो उसका हिसाब परवरदिगार के पास है और काफिरों के लिए नजात बहरहाल नहीं है। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम कर कि तू बेहतरीन रहम करने वाला